नीरव जी डॉक्टरेट इन एजुकेशन है फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो मास्टर्स इन मैनेजमेंट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स. He is a distinguished education and training professional with 31 years of rich experience. Presently, he is a principal at AES AG Higher Secondary School at Ahmedabad. He is also advisor with Sharda Trust, which is an CSR initiative of Arvind Limited, where he is working to enhance the quality of education for underprivileged children. He is also chairman of Principals Association of Ahmedabad and is actively contributing to the various initiatives for the field of advancement of education. He is also member of recruitment committee of principals of the Gujarat government, student career counselor and mentor at various NGOs, writer of various articles which have been published in renowned magazines and journals, including that of IIT Delhi, a very versatile and learned academician and a visionary leader. We are very much thankful to Niro Bhai for joining and guiding us on this topic of Pariksha ki Tayyari from the academic angle. Along with Niro Bhai, I also have two other experts. जैसे मैंने कहा, एक है academic angle, दूसरा है psychological और तीसरा है spiritual. So the second expert is Ashwini Telan. She is psychologist with specialization in clinical psychology, Reiki master conducting training programs in India and abroad. She is also empowered in the areas of transactional analysis, industrial psychology, and youth counseling. She is a corporate trainer and also co-author of the books like Holistic Parenting and Personality Development. She has also worked with various research projects. She is managing partner of Synergistic Business Research Firm and my fellow founder at DSPPL. So Ashwini, welcome to you also for this particular program and on this particular topic. Hearty welcome to you as well. Along with that, I also have Krupa Choksi, company secretary and MBA in marketing by qualification. Very renowned Reiki master conducting training programs in India and abroad. Corporate trainer, chief faculty for parenting programs since last 1 decade. Co-author of the books along with Ashwini, Holistic Parenting and Personality Development for Modern Youth. CEO of Synergistic Business Research Firm. Member of NHRD and my fellow founder, director at DSPPL. So welcome Krupa to you as well. Hearty welcome to you. तो जैसे मैंने कहा परीक्षा की तैयारी, माहौल परीक्षा का है, सब लोग परीक्षा के माहौल में जैसे कि डूब गए हैं. तो परीक्षा की तैयारी करें कैसे, एकेडमिक एंगल से, साइकोलॉजिकल एंगल से और स्पिरिचुअल एंगल से, ये जानना बहुत जरूरी है. कई बार मुझे लगता है कि जितना स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है उतना ही पेरेंट्स को भी परीक्षा को एक ठीक नजर से, ठीक पर्सपेक्टिव से देखना उतना ही जरूरी है. यहाँ पे एक थोड़ा सा जोक मुझे याद आ रहा है. आप लोग बोलोगे कि एग्जामिनेशन पे बात कर रही है और जोक से शुरुआत. तो सारी परिस्थिति को अगर हम ठीक नजरिए से देखें तो हम उस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होते हैं. एक बार क्लास में टीचर सवाल पूछती है कि टेल मी विच नेशन यू डोंट लाइक, और स्टूडेंट हाथ करता है ऊपर, और टीचर हैरान होती है कि बैकबेंचर ने हाथ पहली बार क्लास में ऊपर किया. तो टीचर एक्साइट होती है, उसको कहते हैं कि ठीक है बाबा, बैक बेंचर ही सही पर हाथ ऊपर किया, तो बताना बेटा विच नेशन यू डोंट लाइक. एंड द टीचर सेज मैडम एग्जामिनेशन आई डोंट लाइक. तो एग्जामिनेशन का मतलब है बहुत टेंशन, बहुत एक आफत, बहुत एक मुसीबत इस तरीके से देखा जाता है. कैसे उसको सामना करें एकेडमिक, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल एंगल से, आज जानने की कोशिश करेंगे हमारे तीनों एक्सपर्ट से. पहले शुरुआत करेंगे डॉक्टर नीरो भाई से. या द फोरम इज ओपन. नीरो भाई, थैंक यू. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. आप सभी को नमस्ते, प्रणाम. आज जो मतलब 10 फरवरी हो चुकी है और ऑलमोस्ट आपने बताया इस तरह से एग्जाम फीवर, सभी को दे आर इनटू द एग्जाम फीवर. मुझे पता नहीं है कि इसमें से कितने लोग जुड़े हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सच में.
but maybe they some or other way they are connected with students. So if you are a students, then this is for you. If you are parents, then also it is for you. uh, दो ख्याल मुझे इसके साथ आ रहा है। एक तो परीक्षा की तैयारी है, तो दो चीजें मेरे ध्यान में आती है। एक तो परीक्षा बच्चों के लिए जो स्कूल में एग्जाम देते हैं, बोर्ड की एग्जाम हो या स्कूल की परीक्षा हो, तो उनके लिए तो परीक्षा इन फॉर्मली परीक्षा ही है। पर हमारे लाइक पीपल लाइक अस जो स्कूली शिक्षा से निकल चुके हैं, कॉलेज की शिक्षा से निकल चुके हैं, उनके लिए तो हर रोज परीक्षा होती है। कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं, कोई जीवन में कहीं ना कहीं हम जो भी करते हैं उसमें कोई ना कोई चैलेंज ऐसी आती है जी जो परीक्षा की तरह हो। तो मेरे ख्याल से जो लोग स्कूली शिक्षा में या कॉलेजी शिक्षा में नहीं है, तो वो शायद उस एंगल से भी इसको देखे, तो दिस ऑल द टिप्स व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू मे हेल्प देम। टिप्स इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट समय है ऑलमोस्ट। अगर मेरे पास जो एग्जाम की डेट्स है उस हिसाब से सीबीएसई बोर्ड इज स्टार्टिंग देयर एग्जामिनेशन फ्रॉम 16 फरवरी। 16 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम शुरू हो रही है। गुजरात स्टेट बोर्ड की परीक्षा 11 मार्च को, मतलब आज 10 मार्च हो गई है, 11 मार्च 10 फरवरी हो चुकी है, 11 मार्च से सब 1 महीने के बाद गुजरात बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। और मेरे ध्यान में महाराष्ट्र बोर्ड, मेजोरिटी गुजरात महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं लोग, तो महाराष्ट्र बोर्ड का एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 मार्च। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग एग्जामिनेशन विद इन नेक्स्ट 1 मंथ। तो ये मेरी जो बात करने जा रहा हूँ दो तरह से करने जा रहा हूँ कि एग्जाम के 1 महीने पहले या 10-15 दिन पहले है, तो उस दरमियान क्या करें, और जब एग्जाम देने जा रहे हैं एक्चुअल, तब क्या करना चाहिए। दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। सो नंबर वन, जो लास्ट 1 महीना बचा हुआ है, तो 1 महीने में आपने आज तक जो भी पढ़ा, जो भी आपने प्रिपेयर किया है एग्जामिनेशन के लिए, सो दिस इज अ टाइम टू गो फॉर द रिवीजन। आपको रिवीजन के लिए जाना चाहिए। इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप पूरा कोई टॉपिक, आज तक कोई भी एक टॉपिक ऐसा हो जो आपने प्रिपेयर ही नहीं किया हो, उस टॉपिक को टच करने का मेरा एडवाइस नहीं है। इन केस यू आर स्टडिंग वेल, आप पूरी साल आपने स्कूल अटेंड की है, कोचिंग क्लासेस अगर जाते हो वो अटेंड की है, आप रेगुलर आपके स्टडीज करते आए हो, तो दिस इज टाइम फॉर रिवीजन। तो आपका ये 1 महीने का या 15 दिन का जो भी प्लान है, उसको इक्वल हिस्से में विथ रेफरेंस टू डिफिकल्टी लेवल, आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट इजी है, आपका कैसा प्रिपरेशन है, उसको ध्यान में रख के उसका एक डिटेल प्लानिंग मेरे ख्याल से पहला स्टेप है, तैयार हो जाना चाहिए। यू हैव टू सिट डाउन फॉर ½ एन आवर और एन फॉर आवर। हो सके तो इसमें आप मेंटर की भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन एक अगला महीना, अगला 15 दिन या अगला सप्ताह पूरा आप कैसे प्रिपेयर करोगे, कैसे प्लान करोगे, ये एक मेरे ख्याल से पहले एक इट इज एडवाइजेबल टू गो फॉर द डिटेल प्लानिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते रहते हैं लेकिन प्लान नहीं है, तो कोई कोई टॉपिक या कोई कोई सब्जेक्ट कंप्लीटली ब्लैंक रह जाता है, और आप कोई एक एरिया में फोकस करते हैं जिसका इक्वल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है। So my first suggestion is prepare a detailed plan in keeping in context of marks। जो एग्जामिनेशन पेपर स्टाइल है, तो पेपर स्टाइल को ध्यान में रख के उसके जो मार्क्स है उसको मार्क्स के ध्यान में रख के उसका डिटेल प्लान होना चाहिए। बिकॉज दिस इज वी आर लाइक परीक्षा की तैयारी की बात कर रहे हैं, तो परीक्षा की तैयारी के बाद रेफरेंस में मेरा ये एडवाइस है कि आप डिटेल एक प्लान तैयार कीजिए। You map your timing with your marks and your preparation. That is the first thing I would like to tell. सामान्यतः मैंने ऐसा देखा है कि जो विद्यार्थी
जो स्टूडेंट्स है वो खुद का नोट्स बनाता है अ, पढ़ के, या तो जो भी अपना प्रिपरेशन जो करता है वो प्रिपरेशन करने के बाद खुद के नोट बनाता है और खुद का नोट पढ़ता है, तो उसका रिटेंशन काफ़ी अच्छा रहता है, प्रिपरेशन अच्छी तरह से होती है। आप जो भी पढ़ते हो, जो भी याद रखते हो, तो उसको मतलब रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिटेल कॉन्सेप्ट एंड राइट डाउन योर कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्द में, अपनी खुद की भाषा में, अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग को पेपर में रखना चाहिए, जिससे आपका रिटेंशन बहुत काफी अच्छा रहता है, आपको अच्छी तरह से इसे याद रख सकते हैं। याद रखने में सर्टेन टेक्निक्स जो अदर अगर आपको रखनी हो तो मुझे पता है कि मैं जब मेरा ट्वेल्थ के लिए प्रिपेयर करता था, तो आई यूज टू प्रिपेयर अ फ्लैश कार्ड्स, मेरे कार्ड्स में तैयार रखता था, और मेरे बोर्ड के सामने जो जो इम्पोर्टेंट ऐसी चीज ऐसी इंफॉर्मेशन है जो याद रखने में मुश्किल रहती है, तो उसी टेबल को उसको मैं सामने चिपका के रखता था, मेरे सामने बोर्ड के ऊपर। तो ऐसे मेरे ख्याल से कार्ड्स भी, अगर फ्लैश कार्ड्स आप प्रिपेयर करते हैं तो दैट विल हेल्प यू। एंड वो आप प्रिपेयर करते हैं वो भी एक तरह की तैयारी ही है परीक्षा की, क्योंकि वो प्रिपरेशन करने में भी आपको काफी कुछ याद रह जाता है। एक एक्सरसाइज ऐसी मैंने देखी है कि जो विच इज वेरी रिलैक्सिंग एट द सेम टाइम, इट इज लाइक हेल्प यू इन द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आप किसी को, कोई आपके मित्र है, एक स्टडी कोई फ्रेंड है, उसको अगर कोई कॉन्सेप्ट है वो आप समझाते हो, आप एक्सप्लेन करते हो उनको, तो मेरे ख्याल से वो एक्सप्लेन करना वो आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन है। उससे आपका रिटेंशन भी बहुत बढ़ता है, आपकी भी काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है। मुझे ऐसा याद है कि जब भी हम मतलब तीन दोस्त थे, तो एक एक टॉपिक तैयार करके एक दूसरे को समझाते थे, एक दूसरे को एक्सप्लेन करते थे, म्यूचुअली डिस्कस करते थे। तो उससे हमारा लर्निंग बहुत फास्ट भी होता था और उसका रिटेंशन भी काफ़ी अच्छा रहता था। हाँ, एग्जाम का समय है, मैंने बताया इस तरह समय बहुत कम है। सो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द योर प्रिपरेशन इज अ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट दो तरह का है। बिफोर एग्जामिनेशन आपके पास जो 10-15 दिन है उसका टाइम मैनेजमेंट। एट द सेम टाइम आप परीक्षा में जब जा रहे हैं, तो ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन जो 3 घंटे है आपका, तो उसका भी टाइम मैनेजमेंट है, उसका प्रिपरेशन जो है, तो उसका भी आपको डिटेल प्लान करना चाहिए कि आप 3 घंटे में क्या अटेंड कब करेंगे, कितना समय किसको देंगे। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि काफ़ी बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन जब परीक्षा में बैठते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, जो पहले दो क्वेश्चन है, उसमें उनका ऑलमोस्ट जो मार्क कवर होता है वो हार्डली 20 मार्क्स होता है। पर वो पूरा 3 घंटे में से काफी 1 या 1.5 घंटा उनका पूरा चला जाता है फर्स्ट टू क्वेश्चन अटेंड करने में। और फिर वो एकदम घबरा जाते हैं और फिर एकदम जल्दी से अपना बाकी का जो 80 मार्क का पेपर है वो रेस्ट ऑफ द 1.5 आवर में या 2 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं। सो फर्स्ट टू क्वेश्चंस जो है उनका प्रेजेंटेशन और बहुत बढ़िया रहता है, और बाकी का पूरा जो 80 मार्क्स का जो है वो बहुत अच्छी तरह से नहीं होता है। तो मार्क जो आपका टाइम मैनेजमेंट है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब अभी तो ये टेक्नोलॉजी के समय में और पब्लिशिंग हाउसेस इतने एक्टिव है कि हर एक पेपर की पेपर स्टाइल आपके पास अवेलेबल रहती है। तो वो पेपर स्टाइल अपने हिसाब से आपका प्लान होना बहुत जरूरी है। आई वुड एडवाइस के एक आप परीक्षा जो भी पेपर देने जा रहे हैं, इफ यू आर रियली विलिंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स, इन दैट केस आई सजेस्ट कि आपका एटलीस्ट 3 से 5 पेपर वो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर पहले प्रैक्टिस की हो आपने। हमारे जो हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स है, तो ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो वी ऑलवेज आस्क देम टू राइट डाउन अ फ्यू पेपर्स। और दैट इज ऑल्सो स्कूल में आके वो 3 से 5 पेपर लिखते हैं, और उनसे उनके मार्क में काफ़ी अच्छा रिजल्ट उनको काफ़ी अच्छा मिलता है।
एक अभी तो वो मतलब देखने में कम मिलता है, लेकिन हमारे समय में ऐसा बहुत था कि काफी बच्चे रात को, मतलब परीक्षा आ रही है तो रात को लेट नाइट तक पढ़ते रहते हैं। रात को पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं। सो मेरा एडवाइस ये है कि आपका ब्रेन जो है उसका फूड तो नींद ही है। अगर आप फ्रेश रहना चाहते हैं तो आपको इनफ एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की आपको नींद लेनी चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। 6 से 8 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए, और उसको ध्यान में रख के ही आपका समय पत्रक बनाएं। मैनी ए टाइम्स हम तो सभी रेकी साधक है, तो हमें काफ़ी, मतलब वी आर एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअलिटी। तो कोई बार अगर एंजाइटी होती है या कुछ भी होता है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डू आइदर रेकी, और जस्ट माइंडफुलनेस और मेडिटेशन है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बीच बीच में अगर एक 15-20 मिनट का मेडिटेशन ब्रेक ले, या तो मेडिटेट करे अपने आप को, या तो कुछ नहीं, अगर कर सकते तो आंख बंद करके एक रेस्ट करे, देन ऑल्सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। एक मेजर ये चीज बच्चों में देखने मिलती है कि सर्टेन डाउट्स है वो उसकी क्लैरिटी नहीं है। तो वी यूज टू कीप ऑन पोस्टपोनिंग के ये डाउट क्लियर है, मैं बाद में करवाऊंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। सो ऐसे इंस्टेड ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल दिस डाउट्स, इट इज बेटर टू क्लेरिफाई इट नाउ। कोई कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मतलब उस तरह से ना सोचे कि अगले दिन या 2 दिन के बाद पहले देख लूंगा। इट्स नॉट लाइक सो। क्लेरिफाई ऑल द डाउट्स। कई बार ऐसा होता है कि कई कॉन्सेप्ट इज वेरी स्मॉल, बट इट इज वो कॉन्सेप्ट की आपकी क्लैरिटी नहीं है, तो आपको फिर रट्टा लगाना पड़ता है। So instead of going for this, clarify your doubts very just now, or quickly, like you consult your mentors, और आप जल्दी से आपके मेंटर्स कंसल्ट करके आपका डाउट जो है वो क्लियर करें। स्टडी में कंसिस्टेंसी वो बहुत मायने रखती है। आप कंटिन्यूअस एक पैटर्न से रेगुलरली कंसिस्टेंटली रिवीजन करें, वो हमेशा वेल मतलब आवकारदायक है। आप जो आज पढ़ रहे हो, आज आज जो भी कुछ आपने प्रिपेयर किया है, अगर आपको लगता है कि इसमें आपको डाउट है और उसका वो आपको इंफॉर्मेटिव है और इंफॉर्मेशन जल्दी याद नहीं रह रही है, तो यू कैन अगेन रिवाइज विद इन नेक्स्ट 2 to 3 days। आप अपने सामने या इनफॉर्मल वे भी किसी के साथ बात करके, या मैंने फ्लैश कार्ड बोला तो फ्लैश कार्ड देके भी आप रिवाइज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट है वो डिजिटल डिटॉक्स। काफ़ी बच्चों को एडिक्शन हो गया है अभी। इंस्टाग्राम देखे वगैरह चलता नहीं है कि क्या लेटेस्ट पोस्ट है या व्हाट्सएप में क्या मैसेज आया। मुझे याद है कि लाइक माय डॉटर यूज टू डिलीट हर इंस्टाग्राम अकाउंट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। कुछ अगर कोई प्रिपरेशन करनी है तो वो डिलीट कर देती है। आई ऑलवेज एडवाइज हर कि भाई इट इज बेटर टू डिलीट योर अकाउंट, एंड सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर वर्क। और मेरे ख्याल से ये काफ़ी वर्क करता है, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑफ करने से भी कोई कोई बार लालच हो जाती है कि क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं। सो इट इज़ बेटर टू डिलीट फॉर से 1 month, नो इंस्टाग्राम अकाउंट, नथिंग, जस्ट आप उसमें से कंप्लीटली डिटैच हो सकते हैं। दैट इज़ हाईली एडवाइजेबल। डिफिकल्ट है पर नामुमकिन नहीं है। अगर ये करेंगे तो शायद आप कभी भी फोकस करना हो तो यू विल बी, इफ यू फॉलो दिस प्रैक्टिस, दैट विल हेल्प अ लॉट। जो आपका मैंने बताया पहले भी कि अगर याद नहीं रहता है तो आप अपने फ्रेंड के साथ अगर डिस्कस करेंगे कोई टॉपिक रेगुलरली, एक इवन आप डेली का ऐसा शेड्यूल भी रख सकते हैं कि शाम के समय आप कोई मित्र के साथ अगर इन पर्सन मिल सके तो इन पर्सन, या तो फोन पे आप अपना
टॉपिक का, स्पेसिफिक टॉपिक का डिस्कशन कर सकते हैं। वो डिस्कशन करने से आपको काफी रिलैक्स भी हो जाते हैं आप, और साथ में आपको याद भी बहुत अच्छी तरह से रहता है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो विद वन, एज आई टोल्ड अर्लियर, कि आप 3 या 4 पेपर, प्रैक्टिस पेपर लिखें। और आइडियली अगर कोई आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स है, जो रिस्पेक्टिव टीचर है, जो मेंटर है, वो अगर उनकी हेल्प मिल सके तो उनके पास जाके वो पेपर करेक्ट करवाइए। नॉट टू चेक द मार्क्स, बट हाउ टू रिप्रेजेंट योर पेपर। पेपर किस अच्छी तरह से कैसे सकते हैं, क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं। सी यू हैव टू टेक केयर ऑफ पेपर एग्जामिनर ऑल्सो। जो एग्जामिनर है तो उसको किस तरह से इजी हो जाए पेपर करेक्ट करना, तो वो क्या गाइडलाइन है, उसे क्या फॉलो करना है, तो उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे, सो अगर एग्जामिनर के लिए ये इजी है तो नेचुरली आप अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अ, मुझे याद आ रहा है कि गुरुजी ने एक टेक्निक बताई थी याद शक्ति के लिए, जो विच वर्क्स वेरी वेल। मैं हमेशा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये बताता हूँ कि गुरुजी ने बताया था कि आप कुछ भी अगर याद नहीं रहता है तो पानी का ग्लास साथ में रखो, और एज इफ के पानी के ग्लास में आप वो जो नया है उनको जो टॉपिक है वो पानी के ग्लास को सुनाओ, और फिर वो पानी पी जाओ। देन दिस टेक्निक रियली वर्क्स अ लॉट। सो मेरे ख्याल से अगर कुछ ये भी टेक्निक, और कृपा दीदी उसमें ज्यादा डिटेल में बता सकती है दैट द एंटायर टेक्निक। परीक्षा में एक जैसे प्रिपरेशन के लिए माइंड लाइक मैप डायग्राम और विजुअल जितने भी फिगर्स आप बनाएंगे, तो वो जैसे हमारी मेमोरी है विच इज मोर लाइक इट रिमेम्बर्स फिगर्स वेरी वेल। तो अगर आप कुछ भी जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको फिगर में या मैप में या उसमें अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो काफी जल्दी इजीली याद रहता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपकी जो जो नोट्स है उसमें मैक्सिमम फिगर्स जो है वो फिगर्स आप डालेंगे तो काफी अच्छी तरह से याद रहेगा। हम्म, अगर पहले भी मैंने बताया कि आप खूब पानी पीजिए, स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे, अच्छी नींद लीजिए। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स। फूड जो है, तो न्यूट्रिशंस आपका जो फूड है वो, मैं तो ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि लास्ट 15 दिन या 1 महीना है तो अवॉइड आउटसाइड फूड, बाहर का खाना मत खाइए, क्योंकि कोई बार कुछ इन्फेक्शन लगने से मे बी आपके 1 2 या 3 दिन बिगड़ सकते हैं। तो डोंट टेक अ चांस कि आप बाहर का बाहर जाके कुछ खाना खाइए या बाहर से मंगवा के खाना खाइए। माइंड मतलब आप वो पेरेंट्स है या टीचर्स है, मतलब पेरेंट्स है या स्टूडेंट्स है, अपना ये ध्यान रखे कि एटलीस्ट लास्ट मंथ में आपको बाहर का खाना कुछ नहीं खाना चाहिए, घर का ही खाना चाहिए। सो आप अपना हेल्थ का इनफ केयर ले सके, और वो आपके एक कुछ भी आप कुछ खाने की वजह से कुछ आपका डाइट में कोई इश्यू ना हो, और आप उस तरह से सेफ रह सकते हैं। आई ऑल्सो रिकमेंड नॉट टू यूज व्हीकल। अगर छोटे बच्चे हैं तो, और टू व्हीलर या ऐसा चलाते हैं और टू व्हीलर लेके बाहर जाते हैं, तो आई ऑल्सो एडवाइस के भाई ऐसी कोई व्हीकल अभी एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 15 20 डेज डोंट यूज व्हीकल। आप अपना व्हीकल यूज मत कीजिए, मत चलाइए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत केस देखे हैं कि लास्ट 15 डेज में ऐसे एक्सीडेंट के केस आते हैं कि भाई वो कहीं जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, एंड देन इमरजेंसी में मतलब काफी कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। आप फिजिकली अगर पहुंच पाओ लेकिन मेंटली काफी डिस्टर्ब हो जाते हो। So I always advise them not to use any vehicle during last 15 20 days। कुछ इमरजेंसी है तो ही बाहर जाइए और पेरेंट के साथ जाइए। अगर कोचिंग क्लास में जाना है तो इवन कोचिंग क्लास भी मेरे ख्याल से लास्ट 15 डेज में अवॉइड करना चाहिए, या तो पेरेंट्स के साथ जाना चाहिए, बट अपने खुद व्हीकल ड्राइव मत कीजिए। दैट इज माय पर्सनल एडवाइस, क्योंकि मैंने ड्यूरिंग मेरे स्कूल एज अ स्कूल प्रिंसिपल मेरे पास काफ़ी ऐसे किस्से आए हैं
कि लास्ट आवर में 2 दिन 3 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, भले छोटा एक्सीडेंट हो, बट इट इज वेरी डिस्टर्बिंग. सो आई ऑलवेज tell students not to drive for at least for before examination, at least for 15 to 30 days. um, आपके पास जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगी तो हॉल टिकट आपके पास आएगी. तो मेरे ख्याल से काफी हॉल टिकट के लेकर भी काफी इश्यू हमारे पास आते हैं कि लास्ट मोमेंट पे हॉल टिकट लॉस्ट कर गए, कहीं कहाँ रखा है, छूट गई. तो 2-3 एडवाइस है. एक तो हॉल टिकट है आपका, एक आपका बैग बनाइए, उसी में रखिए, और हॉल टिकट आने के तुरंत बाद आपके पास 3-4 जेरोक्स रखिए. आई ऑलवेज एडवाइज टू कीप जेरोक्स कॉपी इन केस ऑफ इमरजेंसी. आपके पेरेंट्स के पास एक जेरोक्स हो तो एटलीस्ट आप इमरजेंसी में कुछ इश्यू हो तो आप ये हॉल टिकट को सॉर्ट आउट का इश्यू सॉर्ट आउट कर सके. इट इज बेटर टू कीप प्रिपेयर अ पाउच, एंड वो पाउच के अंदर हमेशा उसके पास रखिए. अभी बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन. सो नॉर्मली बोर्ड में जो स्पेसिफिकली 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए इट इज एडवाइजेबल टू गो टू द एग्जामिनेशन सेंटर 1 डे अर्लियर, देख के आ जाए कहाँ पे नंबर है. कोई कई बार ऐसा होता है, मतलब स्पेसिफिकली अहमदाबाद में तो हमने ऐसा देखा है कि एक ही नाम के एक ही एरिया में 2 स्कूल्स रहते हैं. ऐसा होता है कि आप समझ रहे हो कि ये शारदा स्कूल है, और जब एग्जाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि ये शारदा स्कूल नहीं, वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दूसरी शारदा स्कूल है, वहाँ पे नंबर है. सो इट इज़ बेटर टू सी गो एंड पर्सनली चेक द स्कूल बिल्डिंग के आपका नंबर कहाँ पे है बोर्ड एग्जाम के लिए. तो वो भी आपको एक दिन पहले चेक कर लेना चाहिए कि स्पेसिफिक लोकेशन कहाँ है. एग्जामिनेशन की दिन की बात करें, वहाँ पेपर देने के समय, तो आपकी आंसर शीट है, तो आंसर शीट में आप टाइमली पहुंच जाए, समय सर पहुंच जाए. 15 मिनट का पहले इनिशियली गैप होता है, उसमें आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी है. आपकी डिटेल फिलअप करनी है तब बहुत ध्यान से आपकी डिटेल फिलअप कीजिए, क्योंकि कई बार जो डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट लिखने में, नंबर्स लिखने में, तो उसमें काफी बच्चे नंबर ऑफ जीरोस या ब्लैंक जो है वो छोड़ने में गलती करते हैं. सो ट्राई टू राइट इट डाउन मेटिकुलसली, क्योंकि उसमें हमने देखा है कि काफी बच्चे भूल करते हैं, और जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि रिजल्ट इज विथहेल्ड. क्यों? तो कि ये बच्चे ने एग्जाम नहीं दी है. फिर काफी इसके पीछे एक्सरसाइज करके पता चलता है कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन उसने नंबर गलत डाला था, और एग्जामिनेटर जो सुपरवाइजर थे उन्होंने भी वो चेक नहीं किया और चला गया, और फिर काफी रिसर्च के बाद पता चलता है और पेपर मिलता है. तो ये भी हमने ड्यूरिंग माय करियर आई हैव सीन सर्टेन सच केसेस आल्सो. आपके जब आप आंसर शीट लगते हैं तो उसमें आपका नंबर और आपकी डिटेल है, बहुत मेटिकुलसली भरिए, उसमें बहुत शांति से कूल एंड काम होकर भरिए. आपके एग्जाम में जो आप प्रेजेंटेशन पार्ट है, तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो पढ़ा उस पर आपके मार्क्स नहीं आते हैं, आपने जो लिखा उससे आपको मार्क्स मिलते हैं. आपका लिखना जो है उसका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे टीचर डोंट नो कि आप कितना वो सब्जेक्ट में आपका नॉलेज कितना है. वो तो आपका आंसर शीट देख के ही आपको जज करते हैं. तो आपका आंसर शीट का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया कीजिए. जहाँ जरूरत पड़े वहाँ आप पेंसिल का यूज करके डायग्राम बनाइए. डायग्राम मेनी टाइम्स आई हैव सीन दैट कि बच्चे ने अगर डायग्राम बनाया है, स्पेसिफिकली जो साइंस सब्जेक्ट है या कुछ ज्योग्राफी का ऐसा प्रेजेंटेशन है कि जहाँ डायग्राम है, तो टीचर काफी जल्दी से अवॉइड रीडिंग एंड गिव देम मार्क्स, अगर डायग्राम सही है तो जहाँ जहाँ जरूरत पड़े तो बहुत अच्छी तरह से पेंसिल से आपके डायग्राम पेपर में बताइए. साथ में वो डायग्राम की प्रैक्टिस भी जरूरी है, क्योंकि आपको शॉर्ट टाइम में प्रैक्टिस वो डायग्राम बनाना है. कई बार ऐसा होता है कि आपको मैनी टाइम्स लाइक स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर्टेन आंसर्स आते हैं वो बाद में रह जाते हैं, और सर्टेन आंसर्स जो नहीं आते हैं तो उसमें आसपास के उत्तर लिखने में समय जाता है. तो इट इज बेटर टू फोकस के आपको जो आता है
उसको पहले अटेंड कीजिए। जिसमें आपका कॉन्फिडेंस कम है तो वो आंसर लास्ट में अटेंड कीजिए, क्योंकि नहीं तो ये होता है कि आपका जो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है वो जवाब छूट जाता है, जबकि आपकी प्रिपरेशन पुअर है वो आप अटेंड करने में आपका समय जाता है। जहां जहां आपको लगता है कि दीज आर द की वर्ड्स, आपको आंसर लिख रहे हैं वो ये की वर्ड्स है, तो की वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन कीजिए। मेनी ए टाइम्स ये की वर्ड्स देख के ही टीचर वो आपको मार्क्स देते रहते हैं, तो आपके की वर्ड्स को ध्यान में रख के उसके ऊपर अंडरलाइन करके आंसर दीजिए। कोई कोई पेपर ऐसे होते हैं स्पेसिफिकली इन, इफ यू से गुजरात स्टेट बोर्ड, तो उसमें सर्टेन पेपर्स में कैलकुलेटर अलाउड है। तो आप कैलकुलेटर जो आपका कीट है उसमें कैलकुलेटर चेक करके रखिए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपका कैलकुलेटर इनसाइड द एग्जामिनेशन नहीं चल रहा है तो इश्यू आता है, तो आप वो भी ठीक से चेक कर लीजिए। मैनी ए टाइम्स कोई कोई बार ऐसा होता है कि आपने पूरा एग्जाम दे दी, आपके पास आपका हॉल टिकट में काउंटर सिग्नेचर आपके सुपरवाइजर के रहते हैं, तो वो लास्ट में, लास्ट आखिरी दिन में अ, मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं कि हॉल टिकट जैसे ही एग्जाम खत्म होती है तो फाड़ के मतलब उसको छोड़ देते हैं या तो फेंक देते हैं। सो इट इज अ बेटर टू कीप योर एग्जामिनेशन हॉल टिकट विद द सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर टिल यू गेट योर रिजल्ट। आपका रिजल्ट आने तक वो हॉल टिकट को संभाल के रखिए। हॉल टिकट की वो कॉपी जिसमें आपके इन्विजिलेटर या सुपरवाइजर जो है उसके सिग्नेचर है, उसमें आपके आंसर की नंबर भी डाला हुआ रहता है। सो इन केस ऑफ कुछ अगर आपका आंसर शीट्स नहीं मिल रही है तो आपके पास ये प्रूफ रहता है कि आपने एग्जाम भी दी है और उसका आंसर की नंबर वो स्पेसिफिक है। मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ कि जब बोर्ड की एग्जाम आती है तो इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस जो डिफिकल्टी लेवल रहता है, जब हम पेपर सेटअप करते हैं तो वी हैव टू डिफाइन डिफिकल्टी लेवल एट द टाइम ऑफ बोर्ड। जब क्योंकि मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैंने बोर्ड के लिए पेपर सेटअप किया है, तो कोई भी बोर्ड में ये गाइडलाइन रहती है कि आपका डिफिकल्टी लेवल है वो पूरे गांव के लास्ट जो बॉर्डर वाले गांव है जहां कोई सुविधाएं नहीं है उस बच्चे को ध्यान में रख के पेपर निकालिए। So majority of time board examination are very easy with compared to your school examination. So आप प्रिपेयर कीजिए तो बहुत कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर कीजिए। डिफिकल्टी लेवल हार्डली इट इज लेस देन 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिसका डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है। अदरवाइज 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी इजी, स्ट्रेट क्वेश्चंस। सो बी कॉन्फिडेंट और आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए और अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। बी कॉन्फिडेंट क्योंकि ये डिफिकल्टी लेवल काफ़ी कम रहता है स्पेसिफिकली बोर्ड एग्जामिनेशन का। तो ये सभी जो मेरे अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है बोर्ड के साथ का, तो ये मैंने आपसे शेयर किया है। आई होप दिस विल हेल्प टू यू। थैंक यू। Yes. Thank you, जय गुरुदेव। thank you very much. Thank you, Nirobhai, for the great tips that you have given. I'm confident that they are very much useful. So now straight away we will move on to our next panel faculty, Ashwini ji. And question and answer Nirobhai अगर किसी का है तो वो लास्ट में लेंगे। या श्योर अश्विनी श्योर। over to you. Okay, so we will begin quickly क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती। I'll start with the screen share. अभी हम लोग जैसे अभी देख रहे थे, नीरव जी ने काफी कवर किया उसमें, पर उसमें उन्होंने ये भी कहा कि कुछ स्लीप के बारे में भी कहा, सोना चाहिए, है ना। तो क्यों सोना चाहिए ये भी देखेंगे हम लोग, साइंटिफिकली क्यों सोना चाहिए, कैसे वो अपने मेमोरीज को हेल्प करेगा ये भी देखेंगे। ओके, तो अभी हम लोग पहले लर्निंग स्ट्रेटेजीज क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट है अभी, एग्जाम्स तो आ ही गए हैं, दरवाजे पे एग्जाम्स हैं, खटखड़ा रही है और हमें अभी जागृति आई है कि हमें क्या करना चाहिए।
So it is little difficult and challenging for us also to give you at the last moment solution. Okay, so ये specifically हम लोग इसी प्रोग्राम के लिए मैंने डिजाइन किया है. So we will quickly go through it. What are the learning strategies and study skills that we can adapt. आज क्या क्या कवर करेंगे? The process of learning. ये साइकोलॉजिकल टर्म्स में हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या क्या करते हैं यहाँ पे. फिर उसके बाद ये भी देखेंगे कि कैसे यूज करना है. प्रोसेस में क्या क्या आता है. 3 अलग अलग प्रकार आते हैं. एक है SQ3R मेथड, दूसरा है एलेबोरेशन स्ट्रेटेजीज और तीसरा है नोट टेकिंग. जैसे अभी नीरव जी ने भी कहा कि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे खुद के, तो कैसे बनाएंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे. तो वी विल जस्ट गाइड यू थ्रू. तो सबसे पहले तो आई विल टेल यू अबाउट समथिंग व्हिच इज मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू. कि ये सबसे बड़ा स्टडी किया गया था और अभी ये 2015 का रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. दे हैव फाउंड दैट स्लीप प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द एबिलिटी टू लर्न, मेमोराइज एंड परफॉर्म वेल. इसका मतलब क्या है? लर्न मतलब क्या करने का है, लर्निंग कैसे होता है. एबिलिटी टू लर्न मतलब क्या, लर्निंग एबिलिटीज मतलब क्या. तो अपने ब्रेन में एक हिप्पोकैम्पस नाम का एक चीज होता है जो एक मैजिकल स्टोर जैसा होता है, जिसको हम वर्किंग मेमोरी बोलते हैं या करंट मेमोरी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहा जाता है. ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, जो भी हम लोग अभी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो सारा कुछ जा रहा है अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में, अपने हिप्पोकैम्पस. बट अनफॉर्चुनेटली अपना हिप्पोकैम्पस है ना, वो अपने रूम जैसा ही है, छोटे. तो उसमें कितना स्टफ हो सकता है, एक दिन का ही स्टफ जा सकता है. तो प्रॉब्लम ऐसा आता है कि आप जैसे जैसे नया कुछ सीखते हो पहला वाला भूल जाते. ये होता है ना, बहुत सारे टाइम हम फॉरगेट करते हैं. अरे ये कुछ असाइनमेंट दिया था मॉर्निंग को टीचर ने, और दूसरे टीचर ने दिया, फिर तीसरे टीचर ने, ऐसे 6 सब्जेक्ट का अलग अलग असाइनमेंट रहता है. लेकिन हम कौन सा करते हैं, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला. 2 में से एक हो सकता है या दोनों होते हैं, बीच के नहीं होते. वाई? बिकॉज अपने मेमोरी का एक लिमिटेशन आता है, अपने स्टोरेज का लिमिटेशन आता है. जब स्टोरेज का लिमिटेशन आता है तो हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अपना मैजिकल स्टोर हाउस भर गए हैं. पर वो मैजिकल फिर कैसे, ये भी सवाल आएगा आपको. उसको मैजिकल इसके लिए कहा जाता है क्योंकि जब हम सोते हैं, हमारे सोने के 5 अलग अलग स्टेजेस से हम जाते हैं. तो पहली स्टेज में तो हम लोग जस्ट जा रहे हैं अंदर, तो ज्यादा कुछ होता नहीं. लेकिन दूसरी और तीसरी स्टेज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है अपने लिए, क्योंकि ये जो दूसरी स्टेज है वहां पे क्या होता है, ये जो जितना भी कुछ आज हमने एक्वायर किया है उसको सबको सेटल डाउन किया जाता है अपने अंदर. यहाँ पे रैपिड आई मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन वो सब सिंक हो रहा है. क्यों हो रहा है वो? क्योंकि वो सिंक हो रहा है. ओके, तो वो क्या कर रहा है, अपने अंदर की स्पेस बढ़ा रहा है, वो सिंक कर रहा है, अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज रहा है. और ये होता है स्टेज नंबर 2 और 3. अभी 3 स्टेज में क्या होता है मालूम है, वो मेमोरी को रिकॉल मोड में डाल देता है. यानी कि क्या, जब हम सोते हैं स्पेशली रात को, ये अभी नया रिसर्च ऐसा कहता है कि हम जब रात को सोते हैं तब हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है. और आज अनफॉर्चुनेटली हम रात को ही पढ़ाई करते हैं, है ना. 12 के बाद पढ़ते हैं, 3 बजे तक पढ़ते हैं. एक्चुअली वो टाइम है फॉर योर मेमोरी टू बिकम स्ट्रॉन्गर. एंड रिसर्च हैज शोन दैट चिल्ड्रन हु एक्चुअली रीड, लर्न अर्लियर देन दैट एंड स्लीप ड्यूरिंग दैट टाइम, तो 3 और पूरा जो है स्टेज नंबर 2, 3 जो कवर कर सकते हैं. क्योंकि हम लोग देर से सोते हैं तो क्या होता है, हम स्टेज 1 तक ही पहुंच सकते हैं, 5 स्टेजेस कवर नहीं कर पाते. तो जब 2 और 3 के इसमें आते हैं, थर्ड में जैसे ही हम कवर करते हैं, जो करीब करीब अगर हम 10 बजे सोए हैं तो रात को 1 बजे वो स्टेज आ जाती है. तो अगर वो रात को 1 बजे अगर स्टेज आ रही है, स्टेज नंबर 3, तो उनको पता चला है कि जो बच्चे रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, उनकी मेमोरी पावर 20 to 40% ज्यादा होती है नॉर्मल बच्चों. तो ये भी नया फाइंडिंग है जो शायद हमें पता नहीं था.
और ये नई जनरेशन पे ही किया है, ऐसा नहीं कि पहले के जनरेशन पे किया है, 2016 का है ये रिसर्च। तो ये एक होता है। फिर ये जो मैजिकल इंग्रेडिएंट इसमें क्या है, नींद। सबसे बड़ा मैजिकल इंग्रेडिएंट है नींद मेमोरी के लिए। तो जैसे नीरव जी ने भी कहा, इट इज बेनिफिशियल फॉर अस टू स्लीप इन द नाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा चीज यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हैपेंस इंटरनली विद इन अस। अपने अंदर ही हो रहा है ना, बहुत सारी चीजें अपने अंदर हो रही है। जैसे कि कॉम्प्रीहेंशन है, कॉग्निशन जिसको कहते हैं, जिसको कॉम्प्रीहेंशन भी कहते हैं, जिसको अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं आप, समझ। ओके दूसरा आता है स्टोरिंग, अंदर स्टोर भी करना पड़ेगा, एसिमुलेट भी करना पड़ेगा। एसिमुलेट यानी कि उसको थोड़ा सा विस्तार देना है, क्या सीखना है। उसके बाद आता है रिट्राइवल, रिकॉल, और फिर रिमेम्बर। रिमेम्बर तो लास्ट स्टेज है। कैन यू इमेजिन, उसके पहले के स्टेजेस तो हमने कभी किए ही नहीं। जब हम रिट्राइव करते हैं, रिट्राइव का मतलब क्या है, रिट्राइव का मतलब है हम कॉन्शियसली कुछ नहीं करें, लेकिन एक्टिवली वो इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल। और वो कब होगी, जब हम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसके लिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि आपको प्रैक्टिस जैसे ही करते हो, वो आपके एक्टिव जोन में आते हैं, एक्टिव सर्च में वो इंफॉर्मेशन बैठ जाती है, विच इज वेरी इजी टू रिट्राइव देन। उसके आगे क्या आता है, एक बार रिट्राइव हो गया, फिर क्या आता है, रिकॉल करना पड़ता है। रिकॉल यानी कि क्या, जो इंफॉर्मेशन अभी सर्च में है लेकिन सबकॉन्शियसली है अपने अंदर, अभी उसको कॉन्शियसली स्पॉन्टेनियसली बाहर आ रही है अपने अंदर से। कॉन्शियसली हम अभी भी कुछ नहीं कर रहे, रिकॉल में भी हम कॉन्शियस नहीं है। वी जस्ट रिकॉल के सपोज जैसे अभी रिट्राइवल क्या आता है, नॉर्मली हम स्कूल में जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, साइंस 1 का पेपर है, तो व्हाट यू विल रिकॉल, व्हाट यू विल रिट्राइव इज ऑल अबाउट साइंस 1। ओके रिकॉल में क्या आएगा, जो जो सीखे हुए चैप्टर्स है वो सब रिकॉल में आएंगे। द इंफॉर्मेशन जस्ट पॉप स्पॉन्टेनियसली पॉप आउट हो रहा है। लेकिन अभी अपने सामने पेपर जब आता है तो उसको पता चलना चाहिए ना कि ये प्रश्न को ये उत्तर है, अपने अंदर उत्तर है लेकिन वो उसका ही है, ये तो पता चलना चाहिए। ये रिमेम्बरिंग में आता है, विच इज द थर्ड एंड लास्ट स्टेज। तो आपको पता चलता है अरे इसको हाँ रिमेम्बर करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन कॉन्शियसली उसको बाहर निकाल के लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो इस सभी स्टेजेस जो हमारे अंदर हो रहे हैं उसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। अभी सवाल उठता है ये स्टेजेस कैसे हम कवर करें, तो उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड देख रहे हैं, SQ3R मेथड। अभी SQ3R मेथड मतलब क्या, तो यहाँ पे SQ3R का मतलब है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। मतलब क्या कर रहा है, सर्वे यानी कि क्या, हम लोग एक एक देखते हैं। इससे पहले का सर्वे यानी कि यू हैव टू स्कीम, यू हैव टू सर्वे, यू हैव टू ग्लैंस ओवर, गो थ्रू द सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर से नजर तो घुमानी पड़ेगी। अगर नजर ही नहीं घुमाओगे तो पता ही नहीं चलेगा सब्जेक्ट में क्या है। तो एटलीस्ट सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट का लेंथ पहले देखना पड़ेगा, कितना बड़ा है टॉपिक। शायद 4 पेज होगा, 5 पेज होगा, 10 पेज होगा, 15 पेज होगा, कौन से टॉपिक है। सपोज अगर छोटा है टॉपिक तो वो 2 पेज 3 पेज कितने पेजेस का है वो पहले देखना पड़ेगा। टॉपिक्स में सब टॉपिक्स कौन से आते हैं वो देखने पड़ेंगे, चार्ट्स है तो देखने पड़ेंगे। सिर्फ एक बार देख लेने का, इलिस्ट्रेशन है तो देख लेने के। ये हो गया, ये पहला पार्ट हो गया सर्वे का। यू जस्ट सर्वेट कि क्या क्या करना है, अपने पास क्या अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उसमें से क्या लेना है अभी बाद में देखेंगे। सेकेंड स्टेज में क्या है, क्वेश्चन योरसेल्फ। अभी वो बुक तो सामने है, आपको खुद को सवाल पूछना पड़ेगा, ये टॉपिक में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, सपोज एक आधा टॉपिक हम लोग ले अभी, जैसे अगर हम लेंगे कि वाटर, ठीक है, पानी। जैसे अभी नीरव जी ने हमें पानी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, हमने सुना, लेकिन वो हमने क्या किया, ऊपर ऊपर से सुना है, गो थ्रू किया है, सिर्फ डिटेल में गए नहीं है। ठीक है, तो खुद को क्वेश्चन क्या आएंगे कि पानी से कैसे स्टोर होता होगा,
क्या होता है जब पानी पीते हैं एग्जैक्टली, राइट? ये सारे सवाल खुद को ही पूछ रहे हैं ना हम लोग, ताकि उसके सवाल के जवाब मिले। वैसे ही कोई भी टॉपिक हो, उसके खुद को ही क्वेश्चंस पूछ लें। एंड व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, यू हैव रीच द सेकंड स्टेप। यहाँ पे क्या गाइडलाइंस होंगे? सबटाइटल्स, हेडिंग, दे विल प्ले अ बिग रोल इन दिस। उसके बाद थर्ड स्टेज पे आते हैं। खुद को सवाल पूछ लिए, अभी पता है कि कौन से प्रकार के सवाल आ सकते हैं, तभी उसका रीडिंग करना शुरू करना पड़ेगा। अभी ऐसा सवाल आया तो मैं कैसे रीड करूंगी या करूंगा, उसके हिसाब से आपको रीड करना पड़ेगा। तो रीड तो पूरा कर नहीं सकते लास्ट मोमेंट, तो यहाँ पे थोड़े से टिप देती हूँ आपको। फोकस ऑन द की पॉइंट, द कीवर्ड्स। हर एक में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होंगे, उसको मार्क करना, उसके ऊपर फोकस करना, उसका मीनिंग समझ लेना, और कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोले हैं वो समझ लो, बस। से अबाउट अ पैराग्राफ लिखना है आपको, उसमें सिर्फ 7 से 10 वर्ड्स ऐसे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही वर्ड पिकअप करना। क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट आप पूरा तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप अपना बाकी का तो बना ही सकते हो। उसको जोड़ने का काम आपका, आपकी कल्पना शक्ति कर ही सकती है। ओके, तो उसके लिए क्या जरूरी पड़ेगा? अपने की पॉइंट। तो फोकस ऑन द की पॉइंट। ओके, फोर्थ स्टेज में पहुंचेंगे। अभी बुक बंद करना है। बुक बंद करके जो जो याद आता है, जो जो प्रश्न हमने ही खुद से पूछे थे पहले, उसके जो जो जवाब आ रहे हैं, वो ट्राई टू रीड इट आउट, राइट इट डाउन, वट एवर यू वॉन्ट, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है वैसे करो। बट बुक शुड बी क्लोज्ड, यू शुड नॉट लुक इनटू द बुक, बी सिंसियर विथ योरसेल्फ। ओके, और ऐसा लगता है कि अरे ये डिफिकल्ट लग रहा है, ये नहीं जम रहा है, ये वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता, तो उसका मीनिंग पता करो कि इसका ऑल्टरनेटिव वर्ड क्या हो सकता है। जो आपको हम लोगों ने बहुत सारे टाइम वोकैबुलरी में सिखाया कि अल्टरनेटिव वर्ड्स भी तो यूज किए जा सकते हैं ना। So try to use the alternative words instead of using the difficult words if you are not able to recall them. Are you getting this? Remember करने के लिए difficult हो रहा है, so better use the alternative word. Is it clear? अभी ये होने के बाद आप पांचवें स्टेज में आओगे। बुक खोलो, देखो मैंने जितना याद किया था, क्या वो सब कुछ है उसमें? If not, what was left? वो जरा अंडरलाइन करो, वो थोड़ा सा समझ लो, क्या देखो। ऐसे करोगे तो आपको बहुत इजीली, आसान तरीके से आपको सब समझ में आएगा और आप अपने वर्ड्स में लिख पाओ। लर्निंग इज नॉट अबाउट राइटिंग एज इट इज, लर्निंग इज अबाउट राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स एज यू अंडरस्टैंड। ओके, कोई भी परीक्षा होती है ना, आपको क्या आता है इसके ऊपर होती है, आपको क्या नहीं आता है उसके ऊपर नहीं। तो क्या आता है वो की पॉइंट्स में बताएंगे आप लोग, है ना? बाकी का तो उसके ऊपर का फ्लावरिंग है। आर यू गेटिंग दिस? तो वी गो विद दिस। उसके आगे हम जाते हैं। आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम, क्योंकि थोड़ा आपको ऐसा लगेगा मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, लेकिन अपने पास टाइम भी कम है, तो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू फास्ट। ओके, नेक्स्ट कम्स द इलैबोरेशन स्ट्रेटेजी। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा वर्ल्ड वॉर 2 का आपको सीन दिया है ताकि आपको प्रैक्टिकल्स करने के लिए आसान हो। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 का शुरुआत कहाँ हुआ था? 1941 और अंत 1945। ओके, 1941 पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ, यूएस गवर्नमेंट का था वहां पे, है ना, यूएस नेवी था, नेवल फोर्स का, उसके ऊपर पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ। पर्ल हार्बर कहाँ पे है? हवाई में है। ओके, ये सारे अगर आपको ध्यान में रखने हैं तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू स्टार्ट मेकिंग इट मीनिंगफुल। आपने देखा होगा कि आप हिस्ट्री जितना अच्छी तरीके से नहीं पढ़ सकते, उतना माइंड आपको अच्छी तरह से। ऐसा क्यों? क्योंकि हम वो बार बार देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो कहीं पर वो मीनिंग प्रोवाइड करता है अपने को, जब हम विजुअली देखते हैं। हाँ, कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा था, कब क्या हुआ था, उसके लिए ये कहा था। ओके, सो ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन कि पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ ना, इसीलिए तो 1942 में सब गवर्नमेंट ने क्या किया,
सब जो जापान के अमेरिका में रहने वाले लोग थे उनके ऊपर बंदी लगा, नजर कैद कर दी। अभी ऐसा समझोगे तो आराम से आएगा। और उसके लिए क्या करना पड़ा उनको, फेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस कमेटी बनानी पड़ी। सिर्फ नजर कैद करते चलता था क्या? नहीं, तो जापान को भी डिफीट करना पड़ा। और जापान को कहाँ किया? मिडवे में किया। आर यू गेटिंग दिस? जैसे ऐसे धीरे धीरे अगर आप समझ के करोगे ना तो आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। यू ट्राई टू क्रिएट द स्टोरी इन बिटवीन। ओके, फिर ये होने के बाद क्या हुआ होगा वहां पे, तो अब इकट्ठा होने के लिए टाइम होता है। तो 1 बरस और चला गया, और क्या किया हमने? 1943 आया। 1943 में क्या हुआ? फिर 44 आया, फिर 45 आया, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। ये अगर सीक्वेंस आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्यों आया, कैसे हुआ। तो ट्राई टू मेक इट मीनिंगफुल। उसके आगे है वर्बल, इमेजिनरी और इमेजिनल एलेबोरेटर, जिसको इमेजिनरी भी कहते हैं। यानी कि मैं अभी जैसे आपको इमेजिन करवा रही थी ना, दैट इज अ इमेजिनल, मैं इलेबोरेट किया कि क्यों हुआ था ये, उसके पीछे का राज क्या था, क्या कारण हो सकता है। ओके, सो दैट इज हाउ यू क्रिएट दैट एलेबोरेशन। फिर कुछ है जो है एनालॉजिस क्रिएट करते हैं। एनालॉजिस कैसे क्रिएट करते हैं? बाय क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट यू नो एंड व्हाट द न्यू इंफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट। जैसे नींद के बारे में आपको सबको मालूम था, और मेरे पास दूसरी इंफॉर्मेशन क्या आई थी कि नींद रात को होने से 20 to 40% अच्छी तरह से हमारी मेमोरी में जाता है। तो हाउ विल वी पुट इट इन? मैं अगर आपको पूरी तरह से रिसर्च ही बताती रहती तो शायद आपको ये पता ही नहीं चलता। मैंने आपको किस तरीके से बताया? जो आपको पता था उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि मेमोरी और इसका संबंध है। तो आपको पता चला, अरे हाँ ऐसा हो सकता है। तो दिस इज समथिंग, मेकिंग एनालॉजीज, मेकिंग एसोसिएशन। ओके, देन ड्रॉइंग इम्प्लीकेशन। इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है, इसका नतीजा करके ये हुआ है। वर्ल्ड वॉर 1 ही नहीं होता तो 2 हो ही नहीं सकता था, क्योंकि दिस इज द ऑफशूट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। ये अगर मालूम पड़ा तो इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आर यू गेटिंग दिस? तो एक थोड़ा सा खुद का सीक्वेंस, एक खुद के इम्प्लीकेशन सीखने के, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स जिसको कहते हैं, दैट इज ऑल elaboration strategies are all about. Then you create a relationship between the elaborating paraphrases. 2 phrases है, एक मालूम है एक नहीं मालूम है, उनके पीछे भी आप अलग तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग न्यूमोनिक्स यूज करते हैं। न्यूमोनिक्स मतलब क्या, कि 2 चीजों को इकट्ठा मैच करना, इस तरीके से करना कि खुद का इमेजिनेशन के हिसाब से। ओके, जैसे अगर मैंने आपको बोला कि पेस्ट और डक, अगर ये पेस्ट और डक एक्चुअली दोनों अलग शब्द हैं, लेकिन यू कैन इमेजिन कि टूथपेस्ट के जो क्रीम होता है या फिर जो टूथपेस्ट होती है उसका जो ऊपर का बॉक्स होता है उसके ऊपर डक ड्रॉ किया है। सो व्हेन यू इमेजिन दैट वे you can recall both, remember both. Are you getting this? You can remember the toothpaste as well as the duck. So whenever you remove toothpaste, you will remember a duck. Why? Because I said it. This is the elaborating paraphrase. Okay? समझ में आ रहा है यहाँ तक? So we move to the last and very most important, that is note taking or note making, जिसको नोट मेकिंग भी कहा जाता है बहुत सारे टाइम। अभी नोट मेकिंग भी क्या है? taking notes in the form of written summaries is likely to facilitate learning much easier. है ना? जैसे अभी आपको ये मुझे बताना था तो मुझे भी नोट्स निकालने पड़े, मुझे भी स्टिक-ऑन्स पढ़ने पड़े। Are you getting this? मुझे नोट्स लिखने पड़े, ये वर्ड्स लिखने हैं, ये यूज करना है। So I have to summarize whatever I have read into notes. Okay. A good summary condenses the material
मतलब छोटा करता है वो मटेरियल छोटी समरी से। अच्छी समरी होगी ना तो छोटे से छोटे इसमें बहुत सारा कुछ कवर कर सकते हैं। फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंट आइडियाज, जैसे मैंने अभी आपको कुछ कुछ इम्पोर्टेंट आइडियाज बताए यहाँ पे, तो वो सारे आइडियाज को फोकस करके फिर भी आसानी से बताना, इजीली बताना, 15 मिनट में बताना, दैट इज अ गुड समरी। आर यू गेटिंग दिस? वन मस्ट फर्स्ट हाईलाइट द मटेरियल। अभी ये कैसे करना है, याद है आपको SQ3R जो बोला था मैंने? तो वहां पे हमने जो किया था ना रीडिंग में, तो अभी रीडिंग में क्या करना है, व्हाइल यू रीड यू मस्ट हाईलाइट द मटेरियल विच वन फाइंड इम्पोर्टेंट। ओके, अभी ये नोट मेकिंग कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे अभी हम, यू शुड फोकस मोर ऑन द की पॉइंट कीवर्ड, जैसे मैंने आपको कहा। One can also use abbreviated words in order to remember important keywords letters. जैसे विबग्योर हमें बताया था, राइट? विबग्योर के violet, indigo, blue, green, yellow, orange और red, ये कैसे याद रहा? बिकॉज ऑफ विबग्योर। अभी जैसे हमने इसको भी किया है ना, SQ3R। SQ3R क्या है? सर्वे, क्वेश्चन। 3 R कौन से हैं? रीड, रिसाइट, रिकॉल। Are you getting this? So this is how you are going to do it. A+++ मतलब क्या? जो हमारे एक प्रोग्राम है, इसका मतलब है एटीट्यूड, एट्रीब्यूट एंड अप्रोच। समझ में आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। टेकिंग नोट when combined with SQ3R method can give effective results to the student. SQ3R ये बहुत बड़ा टूल है एक्चुअली। अगर आप बराबर से यूज कर पाओ तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे टाइम मैंने जैसे आपको नोट टेकिंग के भी पहले एक बताया था, एनालॉजीज करना। और एक चीज है उसमें, उसमें क्या था, यू कैन जनरेट योर ओन एग्जाम्पल। जैसे अभी आपको मैंने ये अलग एग्जाम्पल दिए यहाँ पे नोट मेकिंग के लिए। विबग्योर दिया, SQ3R दिया, A+++ concept making you learn new things. Are you getting? So what I have done is I generated few examples. These examples were not present. I just generated it for you to understand it much better. समझ में आ रहा है? So that's all from me. Thank you. Jai Gurudev. Thank you, Ashwini, for the good tips. And now we will straight away go to the third panel member, and then we will take the question answer in that. Yeah, Krupa, forum is open. Thank you. Jai Gurudev. Thank you, Ashwini and Sanjay. Okay. तो अश्विनी दीदी और नीरव सर ने बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल टिप्स दिए कि जो हम एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। एंड जो नीरव भाई ने बताया इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी हमारी सारी प्रिपरेशन हो जाती है लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से हम बहुत बड़ा उसका नुकसान कर देते हैं। मे बी रिजल्ट्स आर हेल्ड अप। तो ये तो आप ध्यान में रखना है। प्लस स्टडीज कैसे करनी है इसके बारे में भी अश्विनी दीदी ने आपको बताया। तो मैं 2-3 एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहूंगी कि कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनेशन का हमें फियर आ जाता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। आप किस में फॉल होते हो आप देखो। एक कि जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ नर्वसनेस कहीं पे कॉन्फिडेंस लो है, इसकी वजह से उनको फियर है। दूसरे लोग कि जो पढ़ाई की ही नहीं है एंड जैसे एग्जाम सर पे आ गई ऐसा लगता है अरे अभी पढ़ना पड़ेगा और फिर टेंशन हो जाता है। और तीसरा है कि जो जो जिसने किया ही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट है, उनको ऐसा लगता है मुझे सब आता। तो जो तीसरे है ओवर कॉन्फिडेंट, उनको मैं ये बताऊंगी कि प्लीज आप खुद को जज करना
चाहे तो आप बोर्ड एग्जाम है तो पेपर्स लिख के इवेल्युएट योरसेल्फ कि क्या सच में आपको आता है। क्योंकि बहुत दूसरे दो फैकल्टीज ने बहुत अच्छे से बताया कि एग्जाम किसकी होती है, लिखने की। आप क्या जानते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप क्या लिख के आते हो उसके ऊपर से आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये देखना कि पेपर्स लिख के देखना कि डू यू रियली नो। एंड अगर आपको लग रहा है कि मुझे इतने मार्क्स आएंगे तो क्या सच में आते हैं, अगर नहीं आते तो प्लीज हैंडल दिस। अभी जो दूसरी कैटेगरी है कि जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करते हैं, ओके, तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सारे उससे मैं जा चुकी हूँ। तो आई एम टेलिंग यू माई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तो जब लास्ट मोमेंट पे स्टडी करते हैं ना तो वैसे भी टेंशन है, और जब टेंशन होता है ना तो बिलीव मी हम बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि स्ट्रेस आ जाएगा, उसमें हमें टाइम कम पड़ेगा। एंड टाइम कम पड़ेगा तो पढ़ना बहुत कुछ है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम हमारा कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। तो क्या आएगा, सिर्फ पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। तो इफ यू रियली वांट टू एक्सेल इन योर एग्जाम्स, पढ़ाई में हमें एक्सेल करना है, तो सबसे पहली चीज है कि हमें हर रोज पढ़ाई करनी, सिर्फ एग्जाम टाइम पे नहीं। ठीक है। क्योंकि जो लास्ट मिनट पे पढ़ते हैं ना तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, और जब शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है तो जल्दी से इवोपरेट भी हो जाता है। तो अगर हमें पूरे साल हमने वो रिवाइज किया, पूरे साल हमने पढ़ाई की, तो लास्ट मोमेंट पे एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, बिकॉज यू नो एवरीथिंग, इट इज गॉन इन टू योर एग्जिस्टेंस। अभी हम देखते हैं कि पढ़ाई जब हम करते हैं तो कैसे होती है। क्योंकि बहुत सारे आप में से जो बच्चे हैं बहुत पढ़ाई करते होंगे, यू मे बी वेरी वेरी स्टूडियस, आप अपनी बुक्स लेके बैठते होंगे, शायद 8 8 10 10 घंटा बोर्ड के टाइम पे आप प्रिपरेशन करते होंगे। ठीक है। लेकिन जब मार्क्स आते हैं तो कम आते हैं, तो हमें लगता है कि यार मैंने क्या गलत किया, समझ में नहीं आ रहा है, मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें ये देखना जरूरी है कि हमारे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। तो लर्निंग जो है ना वो 6 स्टेप्स में होती है। ठीक है। मैं अभी एक आपको स्लाइड प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, शायद कुछ मुझे टेक्निकल इश्यू आ रहा है, तो एनीवेज लीव इट। मैं बताती हूँ कि जो लर्निंग है ना वो 6 स्टेप्स में होती है। तो सबसे पहला क्या है कि जब हम पढ़ते हैं या टीचर हमें बोलती है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम जब सुनते हैं तो वो सबसे पहला हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। तो पहला है सुनना या पढ़ना, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है कि जब हम वो जो पढ़ा है या सुना है वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हमने पूरी तरह से उसको समझा है तो एसिमिलेट होता है। ठीक है। ये जैसे हम खाना खाते हैं तो कैसे डाइजेशन होता है, वैसे अपने भीतर ज्ञान का भी ऐसे ही डाइजेशन होता है और अपना लर्निंग ऐसे होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप वाज आइदर लिसनिंग इन द क्लास, टीचर जब पढ़ा रही है तभी ध्यान से आप देखोगे, तो फिजिकल लेवल पे आप सुन रहे हो, या फिर आप बुक लेके बैठे हो तो आप पढ़ाई कर रहे हो। दूसरा स्टेप क्या है कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो स्टोर होता है। ठीक है। फिर तीसरा स्टेप क्या है, तो पूरी तरह से वो आपके भीतर ऐसे रम जाता है, तो वो शॉर्ट टर्म में से लॉन्ग टर्म में जाता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है कि पूरी तरह से आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट, सो इट इज अंडरस्टैंडिंग। फिर फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप है कि अगर एग्जाम में आपको लिखना है, जैसे अभी अश्विनी दीदी ने बताया रिकॉल है, तो जो रिकॉल है उसको रिट्रावल बोलते हैं, तो वो फिफ्थ स्टेप है। और सिक्स स्टेप क्या है, एग्जाम में लिखना या बोलना। तो ये जब हम करते हैं ना, लिखना या बोलना, तो कभी कभी ऐसा आपको भी महसूस हुआ होगा कि कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है। हमने पढ़ा तो सब कुछ था लेकिन फिर भी याद नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शायद ये जो स्टेप्स अपने लर्निंग के हैं ना वो बराबर से हुए नहीं। हमने पढ़ा बहुत कुछ है लेकिन हमें बराबर से वो दिख नहीं रहा, मतलब हमने पूरी तरह से उसको समझा नहीं है। तो जो ये 6 स्टेप्स है उसमें से जो पहला स्टेप है वो फिजिकल लेवल पे होता है,
एंड जो लास्ट स्टेप है वो फिजिकल लेवल पे होता है। लेकिन बाकी के जो स्टेप्स है ना वो मेटाफिजिकल लेवल पे होते हैं, मतलब कि अपने चित्त में। अभी चित्त क्या है? तो चित्त जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अवर इंटेलेक्ट, जो यहाँ पे होता है माइंड एंड हार्ट। तो ये तीनों को मिला के चित्त होता है। और जितना अपना चित्त शुद्ध होता है ना, उतना जो हमने पढ़ा है वो 100% हमें याद रहता है। हम उसको रिट्राइव कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ कि गुरुजी एक स्कूल में बैठे थे, प्रिंसिपल की चैम्बर में, और वहां पे एक पेरेंट आ गई अपनी छोटी बच्ची को लेके, और सीधा प्रिंसिपल के साथ झगड़ा करने लगी कि मेरी बच्ची को इतने कम मार्क्स क्यों आए। तो प्रिंसिपल ने बोला कि जो उसने लिखा होगा उसके ऊपर से होगा। तो बोले कि नहीं, मेरी बच्ची ने ये बुक 20 बार पढ़ा है। तो प्रिंसिपल ने बहुत शांति से जवाब दिया कि मैडम, यहाँ पे आपकी बच्ची ने कितनी बार बुक पढ़ा है उससे एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन उसने जो लिखा है उसके हिसाब से आता है। राइट? आप कितनी बार पढ़ रहे हो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके भीतर क्या जा रहा है, आप कितना रिट्राइव कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो जितना अपना चित्त शुद्ध होगा ना, उतना हमें बहुत जल्दी से याद रहेगा। आपका ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा। एंड जो भी आपने पढ़ा है आप 100% एग्जाम में लिख पाओगे या फिर बोल पाओगे। ओके। तो ये कैसे होगा? अभी आप देखो, स्वामी विवेकानंद की मेमोरी ऐसा कहा जाता है कि फोटोग्राफिक थी। मतलब वो जो पढ़ लेते थे, जो एक बार उन्होंने देख लिया तो उनको पूरा वर्बेटिम याद रहता। तो ऐसी मेमोरी हमारी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो योगी थे इसलिए उनकी थी, लेकिन अगर अपना चित्त शुद्ध है तो हमारी मेमोरी भी इतनी अच्छी हो सकती। अभी क्वेश्चन है कि चित्त शुद्ध कैसे करेंगे? तो चित्त शुद्ध हम कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग रेकी सिखाते हैं तो वी रेकमेंड कि आप रेकी सीखो। हमने ये देखा है कि जो जो बच्चे रेकी सीखे हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनका रिजल्ट, उनके परसेंटेज बहुत बढ़ जाते हैं। उनको टेंशन बिल्कुल नहीं होता, और वो हर एक फील्ड में वो बहुत आगे जाते हैं। अब उनकी एक पर्सनालिटी होलिस्टिक हो जाती है ना? तो जो जो अपने भीतर की फियर्स है वो भी निकल जाएगी, जो जो अपने हम बोलते हैं कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कम है वो भी निकल जाएगा। तो ये करना बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं कोई आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एडप्ट करो और उसको हर रोज करो। मेक इट अ डे टू डे रूटीन। कभी कभी पेरेंट्स हमें बच्चों को बोलते हैं, क्योंकि बच्चे सीखे हैं रेकी और पेरेंट्स नहीं सीखे, तो बोलते हैं कि अरे बोर्ड एग्जाम है, तुम ऐसे टाइम पास मत करो, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो तभी हम पेरेंट्स को बुला के बोलते हैं कि दिस इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। जो आपका बच्चा 4 घंटा में पढ़ता है, वो रेकी करने के बाद 2 घंटे में पढ़ेंगे, तो 2 घंटे बचे कि नहीं? तो इस हिसाब से कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमें हर रोज करना चाहिए। ठीक है। अभी उससे क्या होता है कि बहुत सारा स्ट्रेस होता है, यू वांट टू स्कोर, और आजकल कंपटीशन का जमाना है, तो परसेंटाइल ज्यादा आना चाहिए, आपका सीजीपीए अच्छा होना चाहिए। ओके, आपको जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें आपका रैंक आना चाहिए, तो ही आप कुछ आगे कर सकते हो। तो इस कंपटीशन में एवरीबडी स्ट्रेसफुल। तो ये स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है कि जो बहुत यूजर फ्रेंडली है, आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो। यू कैन डू इट इन पार्ट्स। राइट? सो कोई भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आप करो। इन जो जो स्कूल्स में हमने बच्चों को रेकी सिखाया है, तो वहाँ की जो मैनेजमेंट उन्होंने कंफर्म किया है कि उनका रिजल्ट पहले 50% आता था, अभी 100% जो स्टूडेंट्स है पास हो रहे हैं, उनको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। सो जो लोग आप में से काफी लोग सीखे होंगे लेकिन नहीं सीखे, मैं वो रेकमेंड कि प्लीज आप सीखो। दूसरी चीज जो अश्विनी दीदी ने बताई कि रात को सोने से मेमोरी पावर बढ़ता है। ठीक है। तो पढ़ाई दिन में करनी चाहिए। अभी पढ़ाई दिन में क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जैसे ही हम सूर्योदय के बाद पढ़ाई करते हैं तो सोलर एनर्जी अवेलेबल है। एंड सोलर एनर्जी जब अवेलेबल है ना, तो हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। तो वो जो सूर्य नाड़ी एक्टिवेटेड है ना, तो लर्निंग बहुत अच्छे से होता है। तो इसके लिए भी हमें अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आप जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ के पढ़ाई करो। एंड मॉर्निंग जो आवर्स है ना, फ्रॉम से 5 to 10,
तो उसमें आप खुद ही अनुभव करोगे। ओके, डू इट एज एन एक्सपेरिमेंट। 1 वीक आप करके देखना कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, एंड जो पढ़ रहे हो ना बहुत अच्छे से याद हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगी कि पानी, तो कभी कभी हम पानी पीने में कंटाला करते हैं। ओके, क्योंकि बॉटल हमारे पास है नहीं, अभी कौन जाए अंदर और पानी पिए। तो इसको बहुत ही ध्यान देना, बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। क्योंकि अपने ब्रेन में 90% पानी, अपने बॉडी में 70% पानी है। और जब हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं ना, तो हमें सारी बीमारियां भी आती है। जब हमें डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो अपना माइंड भी डल हो जाता है, एंड आपको जो आप पढ़ रहे हो ना उसमें आपका ध्यान नहीं लगता। तो पानी की मात्रा बराबर से पीना, एंड ये भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, और आप खुद ही बोलोगे कि हाँ, सच में मजा आ रहा है। ठीक है। अभी नीरव सर ने आपको ये भी बताया कि पानी का एक्सपेरिमेंट, तो पानी का जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो भी क्यों करना है कि जैसे मैंने बोला कि अपने शरीर में 70% पानी है। तो जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, वो एक पानी का ग्लास रखो, और वो चैप्टर उसके सामने जोर से बोलो। तो वाटर में जो मॉलिक्यूल्स है, उसमें ये सारा ज्ञान स्टोर हो जाएगा। फिर वो पानी पी जाना, और उसके बाद फिर से एक बार वो चैप्टर जोर से रिसाइट करोगे, तो बिल्कुल आपको याद रह जाएगा। क्योंकि अपने बॉडी में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। एंड पानी में भी मेमोरी है, उसमें ये सारा नॉलेज स्टोर हो जाएगा। सो डू इट एज एन एक्सपेरिमेंट, राइट। उसके बाद एक और टेक्निक है जो मैं बताऊंगी, योग निद्रा। कि जो अगर आपको कुछ चैप्टर नहीं आ रहा, तो क्या करना कि योग निद्रा है, उसमें 2 पार्ट्स है कि जो अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो उसमें एक पार्ट है कि जहाँ पे इंटरनलाइजेशन है, कि सब हमने अलग अलग बॉडी पार्ट्स को देखना है। और उसके बाद जब पूरा अपना बॉडी हमने सिर से पांव तक देख लिया, उसके बाद उसको पॉज करना, योग निद्रा को। और जो चैप्टर आपको नहीं आ रहा है, आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि आप ये चैप्टर जोर से पढ़ो। ठीक है। एंड फिर जो दूसरा पार्ट है वो प्ले करने के लिए बोलो उनको। एंड ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हर रोज करोगे ना, तो आप बहुत सारा ऐसे ही सीख सकते हो। क्योंकि ये सीधा अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। आप ऐसे एक रिकॉर्डिंग भी बना सकते हो कि जहाँ पे फर्स्ट पार्ट के बाद आपका चैप्टर, और उसके बाद में लास्ट पार्ट। एंड एवरी डे आप ये सुनते रहोगे ना, तो आप बिल्कुल अच्छे से वो ग्रास्प कर पाओगे। ठीक है। सोने से पहले भी आप जब सोने के टाइम पे जाते हो, कि आपको नींद आ रही है, तो आप बोल सकते हो अपने पेरेंट्स को कि ये चैप्टर पढ़ो। उससे क्या होता है कि सोना, जब हम सोने के लिए जाते हैं ना, तो अपना ब्रेन थोड़े टाइम के लिए हिप्नोगॉगिक स्टेट में जाता है। और उस टाइम पे अपना सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, तो हम बहुत सारी चीजें ग्रास्प कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज भी आप जरूर करना। उसके बाद अभी जो लोग बोर्ड में हैं, तो आपके लिए तो अभी लास्ट मोमेंट है। हम्म, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि मेडिटेशन है, प्राणायाम है, या फिर जो रेकी है, तो ये आपको बहुत रिलैक्स कर पा देती है। ठीक है। अभी समझो एक पेपर अपना अच्छा नहीं गया, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि अभी कैसे होगा, मैं पास होंगी, मेरा रिजल्ट बिगड़ेगा, तो वो ही टेंशन में हम दूसरा पेपर भी बिगाड़ देते हैं, क्योंकि मन लगता नहीं है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ओके, जो हुआ हुआ, लेकिन मेरा ये दूसरा पेपर अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अगर पुराने पेपर के उस हिसाब से ही सोचते रहेंगे, तो आगे का हमारा रिजल्ट खराब होगा। तो कोई भी प्रैक्टिस जब आप करोगे ना ऐसा, तो आपको प्रेजेंट में लाएगी। प्रेजेंट में लाएगी तो आप फोकस कर पाओगे कि ओके, अभी मुझे क्या करना, जो हुआ वो हो गया, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, उसके ऊपर आपका ध्यान जाएगा। तो जो लोग की एग्जाम अभी नहीं है, उनको मैं बताऊंगी कि प्लीज प्लान करना अपनी स्टडीज के लिए, एक टाइम टेबल बनाओ। कितना टाइम में आपका कोर्स खत्म होगा, कितना टाइम में आप रिवीजन करोगे। ओके। एंड अगर आपने हर रोज तय किया है कि 5 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे, तो नॉर्मली ये भी होता है कि हम अलार्म लगा के सोते हैं, और जैसे ही 5 बजते हैं तो हमें नींद आती है, इसलिए हम बंद करके सो जाते हैं। तो ऐसा हर रोज क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना माइंड है थोड़ा वीक पड़ रहा है। तो अपने माइंड को स्ट्रांग करना कि नहीं, पढ़ाई करनी है तो करनी ही है, मुझे 5 बजे उठना ही है,
का आप 2-3 अलार्म लगाओ, अपने पेरेंट्स को भी बोलो, और सीधा उठ के ब्रश ब्रश करके आप बैठ ही जाओ, क्योंकि बेड पे लेटे रहेंगे ना तो ऐसे सोते ही रहे। तो अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। एंड जो भी प्लान करो लॉन्ग टर्म प्लान करो, कि हर रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करोगे ना तो एंड में ज्यादा नहीं आए, बिकॉज यू नो सो मेनी थिंग्स, और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि मुझे आता है, मुझे आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आप जरूर करना। और कभी कभी जैसे मैंने बोला कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करने से हमें नर्वसनेस आती है, और बहुत कम करने से भी आती है, क्योंकि टेंशन है पास होंगे कि नहीं। तो बहुत कम भी नहीं करना है, लेकिन ज्यादा पढ़ाई करोगे ना तो तभी खुद को संभालना, क्योंकि उस टाइम पे हमें सब कुछ आता है लेकिन नर्वसनेस होती है। तो सच बताऊं तो हर एक को थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस होती है। हाँ, लेकिन कोई इसको हैंडल कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। जो नहीं कर पाता ना वो बहुत ज्यादा अ, अपने ऊपर ये सारी टेंशन ले लेता है, क्योंकि सबको एंजाइटी है क्या आएगा पेपर, क्या मैं पूरी तरह से लिख पाऊंगा, कि जो मैंने पढ़ा है 100% मुझे याद, वहां पे याद आएगा क्या। ऐसे थोड़ा थोड़ा तो सबको होता है, लेकिन उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। और उसको जब हम मैनेज करते हैं ना तो हम इजीली पेपर अच्छे से लिख पाते हैं, ठीक है। तो एक मैं छोटा सा आपको ध्यान सिखाती हूँ। हाँ, करोगे आप लोग? 5 ही मिनट का है, तो जरा आंखें बंद करते, हम सब करते एक साथ। तो चलो आंखें बंद करो, सारा ध्यान अपने श्वसन की ओर लेके जाना, देखना प्रत्येक श्वास कैसे भीतर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। श्वसन की सुंदर प्रक्रिया को निहारो, और देखो कि मन में कौन से विचार अभी आ रहे हैं। क्या आप नर्वस फील कर रहे हो तुम? क्या आपको एंजाइटी है कि पेपर कैसा होगा? बहुत ही प्रामाणिकता से खुद को ये जवाब देना, और खुद को पूछो कि क्या मैंने प्रिपरेशन बराबर की है। तो क्या चीज ऐसी है कि जो मुझे बॉदर कर रही है? या मैंने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, या मैंने कुछ छोड़ दिए हैं इसकी वजह से एंजाइटी है? क्या मैंने पढ़ा है लेकिन मेरा ध्यान नहीं था, इसलिए मुझे याद नहीं है? अगर ऐसा है तो खुद को समझाना कि मैं फिर से एक बार वो चैप्टर पढ़ूंगा, पूरे ध्यान से पढ़ूंगा, कि जिस हिसाब से मुझे वो चैप्टर अच्छी तरह से आ जाए। और खुद को ये भी समझाना कि तैयारी तो मैंने अच्छी तरह से की है, तो प्रयत्न करना सिर्फ मेरे हाथ में है, रिजल्ट देना भगवान के हाथ में। सो खुद को पूछना कि हैव आई गिवन माई 100%? क्या मैंने पूरी प्रामाणिकता से ऑनेस्टली मैंने पढ़ाई की है? अगर जवाब हाँ आता है तो बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देना, ये सोचना कि जो होगा अच्छा ही होगा। और अगर जवाब ना है तो खुद को समझाना कि मुझे थोड़ी और तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो होता है जीवन में अच्छे के लिए होता है, और जो होगा अगर एग्जाम में मुझे सब आ जाएगा तो मुझे आनंद होगा, लेकिन मुझे नहीं आया तो मुझे निराश नहीं होना है, मुझे हताश नहीं होना है। मैं और अच्छे से पढ़ाई करके नेक्स्ट एग्जाम अच्छे से दूंगी।
क्योंकि एग्जाम सिर्फ ये तय करती है कि हम कितना जानते हैं। तो एग्जामिनेशन वो इस जीवन का अंत नहीं है, इससे कुछ भी रुकता नहीं। लेकिन अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो हमारा भविष्य सुधरेगा। तभी सवाल है कि मुझे क्या करना है, खुद को ये पूछना, और अंदर से आपको जवाब आएगा। आप सब लोग एक्सेल करने के काबिल हो, आप सब टॉपर्स बनने के काबिल हो, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी, क्या वो करने के लिए तैयार हो, खुद को ये पूछना। और जब हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो हमें ये सारी चीजें जो डिफिकल्ट लग रही है वो आ जाती है। तो अगर कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो खुद को समझाना कि बाकी लोगों को आता है तो मुझे क्यों नहीं आता। शायद मैंने ध्यान कम दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो चीज हमें नहीं आती उसके पीछे पड़ जाते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छे से आ सकती। तो आज से जो मुझे नहीं आ रहा है उसके ऊपर मैं फोकस करूंगी या करूंगा, और उसको थरोली मैं पढ़ाई करके याद करूंगा, ताकि मैं वो सब्जेक्ट में भी मास्टरी पा सकूं। और ऐसा करने से अभी आप देखो कि आपके विचार कैसे आ रहे हैं। आपके विचार बिल्कुल शांत हो गए हैं, क्योंकि आपने क्या किया, अपने प्रॉब्लम को ढूंढा। ये जो एंजाइटी हो रही थी, नर्वसनेस हो रही थी, उसका प्रॉब्लम किधर है आपको पता चला। और एग्जाम के पहले अगर नर्वसनेस हो रही है तो खुद को समझाना कि बस मैंने अपनी तरह से पूरी तैयारी कर दी है, अभी जो होगा सो होगा। ऐसा करके बिल्कुल प्रेजेंट में आ जाना। 3 लंबी गहरी सांस लेना, धीरे से छोड़ देना। दूसरी लंबी गहरी सांस लेना, धीरे से छोड़ देना। एक और बार लंबी गहरी सांस लेना, और धीरे से छोड़ देना। और जब भी स्वस्थ लगे, शांत लगे, धीरे से आंखें खोल देना। वाह, जय गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच कृपा दीदी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई सवाल ओके। पूछना चाहता है, या ध्यान के बाद सब शांत हो गए हैं और सवालों के जवाब एग्जामिनेशन के पेपर में आप अच्छी तरह से लिख पाओगे? किसी को अगर सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू नीरव भाई फॉर द टिप्स दैट ही हैज गिवन। प्लान वेल, टेक नोट्स, मेक यूज ऑफ फ्लैश कार्ड्स, meditate, start teaching if you want to learn, explain to your fellow students, have a consistent study, gets your doubts clarified as early as possible, detox digitally, pay attention to your time management before and during the examination, make use of figures and maps which are helpful, follow the proper regiment, whether it is for the food, whether it is for the sleep, and good advice for the avoiding use of vehicle during last 15 days of your examination.
Take care of your hall ticket, check exam location, see the level of difficulty, prepare confidently, and appear confidently. Thankful to Ashwini as well for giving the good tips. Process of learning, then SQ3R, survey, question, read, recite, review, elaboration studies, and the notes taking activity. She explained it very nicely. And thank you to Krupa Didi as well for explaining the three types of students, then the process of learning, making use of the Reiki and other spiritual practices, making full use of solar energy, the water experiment, yoga nidra, pranayam, and the last meditation. So thankful to all three faculties. If you have any question, we can take that question. Else, we'll conclude today's session. Okay, I think there are no further questions, so we can conclude today's session. Once again, very much thankful on behalf of DSPPL to Dr. Niro Thakkar, to Ashwini Telang, and Krupa Choksi. Thanks to everyone for joining this program. जो लोग आज नहीं आ पाए उनके लिए DSPPL के YouTube पे हम ये जरूर अपलोड करेंगे. Thank you very much. Thank you. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई होप कि जो हमने आपको सिखाया है आप इम्प्लीमेंट करोगे तो 100% आपका रिजल्ट अच्छा होगा. सो प्लीज डू इट, क्योंकि आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस है. और आपको कुछ भी डिफिकल्टी है, यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट अस. वी आर ऑलवेज देयर. Thank you, Jai Gurudev. We will conclude today's session here. Thank you. Jai Gurudev.